Hello friends, welcome to the channel. Today we will talk about postmodernism. We started from video number 1, Age of Chaucer, and today we have reached to lecture 13, that is postmodernism. Very important, all the lectures are very important for UGC NET, JPSC, CUET or be it any other literary competitive examination. All the features of postmodernism, all the major writers, all the major writings that we are going to cover here. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर daily live sessions होंगे, daily extensive MCQ practice होगी, PDF of each topic will be given in class और mock test होते हैं हर weekend पे जिससे कि आपकी अपने exam के लिए बहुत ही thorough preparation हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of लिटरेचर. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए. पोस्ट मॉडर्निज्म 1945 से चलती हुई आज तक की एक एरा, 45 द ईयर इन विच द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिड एंड. जितने भी मोमेंट्स म्यूजिक में, आर्ट में, लिटरेचर में 1945 के बाद हुए, एंड दीज वर द reactions against modernism. This is what we call to be postmodernism. So postmodernism, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, a period that occurred after the modernist period. Modernist period के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. जितने भी इवेंट्स इंस्पायर हुए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू का इम्पैक्ट, कोरियन वॉर का इम्पैक्ट, वियतनाम वॉर का इम्पैक्ट, कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट, सिविल राइट्स मूवमेंट का इम्पैक्ट और इवन the impact of the decolonization of the major Asiatic and African countries. वो सब कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सपीरियंस है. मॉडर्न एरा की अगर बात की जाए थोड़ी सी आज के वीडियो में भी, तो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट था, होलोकॉस्ट का इम्पैक्ट था, एटॉमिक बॉम्बिंग का इम्पैक्ट था. ये सभी चीज़ें जिसने इंसानों को परेशान किया हुआ था, एंड पीपल वर थिंकिंग कि कोई ह्यूमैनिटी बची भी है या नहीं बची. और इसके बाद आया पोस्ट मॉडर्न एरा, जो कि इन सभी इवेंट्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन था. टाइटल पोस्ट मॉडर्निज्म fits very well within this era because it depicts how people reacted to the events of modern era. ऐसा लगता था सभी राइटर्स इस ट्रॉमेटिक पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहते हैं. Literature of this period reflects the social activism and social change characteristics of the time. जो changes अब लोग लाना चाह रहे थे. In the latter half of this period, 20th century, if we say, the influence of the digital age is reflected in new and emerging forms of writing and other literary works. और postmodernism, ये लाइन लिखना तो आप बिल्कुल मत भूलिए, is the reaction against the modernist moments. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे, हम इनको डिटेल में भी कवर करेंगे, समझेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डू नॉट वरी. मेटाफिक्शन, अनरिलायबल नरेशन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, इंटरटेक्चुअलिटी. तो ये 3-4 थीम्स हमेशा होती हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर में. हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे. साथ ही साथ ऑल दीज वर्क्स डू कवर दी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो ऑफ द पास्ट ऑफ द ऑनगोइंग पीरियड बोथ. तो फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म में सबसे पहले देखते हैं इंटरटेक्चुअलिटी. आई मीन आपको कोई वर्क देखकर याद आ जाए कि कोई बहुत पॉपुलर रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है या फिर किसी पॉपुलर इवेंट को इनकलकेट किया गया है. राइट. The word intertextual was coined in 1960s by Julia Kristeva in her analysis of Bakhtin's concept of dialogism and carnival. Bakhtin के concept लगभग आप सभी जानते होंगे. And what she thought that all the texts were in conversation with the other text. कहीं ना कहीं हर टेक्स्ट अपने आप में किसी दूसरे टेक्स्ट को या किसी आउटसाइड इवेंट के रेफरेंस को समेटे हुए है.
and could not be read or understood completely without an understanding of their interrelatedness. देखिए कितने अच्छे से हम एक interrelatedness फाइंड करते हैं between the Ulysses by James Joyce and between the Odyssey of Homer. सारे कैरेक्टर्स लगभग पैरेलल हैं. मिडनाइट चिल्ड्रन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इंटरटेक्चुअलिटी का. जब हम शुरुआत में ही देखते हैं कि 1001 चिल्ड्रन आर बॉर्न मैजिकल चिल्ड्रन, तो इट गेट्स रिलेटेड टू दी 1001 अरेबियन टेल्स. तो कहीं ना कहीं कुछ आपको याद आ जाए कि अरे ये तो किसी और टेक्स्ट में भी ऐसा रेफरेंस यूज़ किया गया है, या समथिंग यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट एनी अदर इवेंट, एनी अदर पॉपुलर टेक्स्ट और पर्सनैलिटी. दैट इज इंटरटेक्चुअलिटी. और भी एग्जाम्पल्स हैं. देखिए इंडियन इंक रिटन बाय टॉम स्टॉपर्ट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसको पढ़ने के बाद आपको E.M. फॉस्टर पैसेज टू इंडिया ज़रूर याद आएगा. दोनों का सेम थीम है, वेदर अ गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप इज पॉसिबल बिटवीन एन इंडियन एंड अ यूरोपियन. तो इंडियन इंक, अ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैसेज टू इंडिया 1924 बाय E.M. फॉस्टर. पैस्टिश इंटरटेक्चुअलिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. पैस्टिश का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग के लिए जाएंगे तो इट विल से वर्क ऑफ आर्ट, पीस ऑफ राइटिंग दैट इज क्रिएटेड बाय डेलिबरेटली कॉपिंग द स्टाइल ऑफ समथिंग एल्स ऑलरेडी रिटन. तो पैस्टिश अगर वर्ड का मीनिंग देखें तो टू पेस्ट टुगेदर द मल्टीपल एलिमेंट्स. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड टॉम स्टॉपर्ट का, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर्स लिए हैं जो कि हैमलेट में प्रेजेंट थे. हैमलेट के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. शेक्सपियर ने उतना एक्सटेंसिवली इन दो कैरेक्टर्स के व्यू पॉइंट्स और थॉट्स के बारे में नहीं लिखा, और टॉम स्टॉपर्ट ने सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स को सेंट्रल कैरेक्टर बताते हुए हमें इनके व्यू पॉइंट्स, इनके थॉट्स और इनका पूरा कंसर्न बताया. So this is a good example of pastiche. Next is metafiction. सिंपल टर्म्स में बताती हूँ मैं पहले आपको. जब आपको पढ़ते हुए ये एहसास हो कि नो दिस इज नॉट रियल, यू आर रीडिंग समथिंग फिक्शनल. जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो फिक्शनल है, रियलिटी में ये नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई फील आ जाए, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहें अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए, जिसको कि हम कहते हैं विलफुल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. कॉलरिज का दिया हुआ एक टर्म है, एसटी कॉलरिज का. तो विलफुल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जब आपको फील हो कि आप उसको इग्नोर करके पढ़ते जा रहे हैं. बहुत बार मूवीज में ऐसे सीन आते हैं जैसे द हीरो जम्प्ड फ्रॉम द 100th फ्लोर एंड इज सेफ इन द एंड. तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ मूवीज में पॉसिबल है, फिर भी आगे देखते हैं क्या होगा. यू डू नॉट टर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल और समथिंग लाइक दैट कि अब नहीं देखना, ये तो रियलिस्टिक नहीं है. तो ऐसा फील भी नहीं आता, एंजॉय भी करते हैं, अपनी डिसबिलीफ को एंजॉय करते हैं बेसिकली आप, राइट. सो कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ते हैं आपको जॉफरी चौसर पूरा टाइम ये एहसास कराते रहेंगे कि दिस इज द एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज. पैरोडी है, फिक्शन है, ये आपको फील होता रहेगा. सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ते हुए भी आपको पूरा टाइम ये फील होता रहेगा कि दिस इज fiction. जो कुछ भी हो रहा है, 1001 children are born same point of time, and they can also contact with each other using telepathy, and they can meet with each other just like that. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत आएगा पढ़ने में. सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिक्शन. मैजिक रियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पोस्ट मॉडर्निज्म का. लिटरेरी वर्क में कहीं ना कहीं एक शार्पली डिफाइंड, स्मूथली पेंटेड इमेज होती है जो कि सिरियलिस्टिक होती है, नॉन बिलीवेबल होती है. द थीम्स एंड सब्जेक्ट्स आर ऑफन इमेजिनरी. मैजिक का एलिमेंट होता है यहाँ पर, मेटाफिक्शन से कंफ्यूज मत करिएगा. जैसे मैजिकल एलिमेंट है सलमान रश्दी में, एक तो विच ही हैं, एक पार्वती द विच नाम के एक कैरेक्टर हैं जो कि रियलिटी में मैजिक कर सकती हैं, किसी को गायब कर सकती हैं, किसी को डी शेप कर सकती हैं, किसी को किसी भी पर्सन में कन्वर्ट कर सकती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं. एंड दिस वॉज यूज्ड एंड दिस वॉज टेकन टू बी वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ डे टू डे सिनेरियो. वैसा ही सेम होता है 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज 1967. मल्टी जेनरेशनल स्टोरी चलती है अबाउट अ पैट्रियार्क हू ड्रीम्स अबाउट अ सिटी ऑफ मिरर्स कॉल्ड मोकेंडो.
सो हमें भी उनके मैजिक के हिसाब से चलना है. जो भी मैजिक दिखाया गया, everyone in the story also takes that magic and takes that supernatural realistic element to be very normal. This is what magical realism is. अगर आप magic realism को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, you can search a video of mine using magic realism in my name and you will find the better clarity about this concept. Magical realism, this term was coined by Franz Roh. ये आपको याद रखना है. He was working upon an art moment called new objectivity. Next feature of postmodernism literature is unreliable narrator. आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा फील हो कि हमें तो सिर्फ स्टोरी का एक ही पहलू दिखाया जा रहा है. वी आर एबल टू सी ओनली दी वन साइड ऑफ द कॉइन फ्रॉम वन पर्सन्स पर्सपेक्टिव. तो इस पर यकीन करें या ना करें, मूवीज में भी होते हैं अनरिलायबल नैरेटर्स और फिक्शन में तो होते ही हैं. टर्म वॉज कॉइन्ड इन 1961 बाय वेंसी बूथ इन द रिटोरिक फिक्शन. और दो एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं तो वदरिंग हाइट्स और कैचर इन द रे काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. वदरिंग हाइट में हमें सिर्फ नेली डीन नाम की एक सर्वेंट है जो सभी इवेंट्स बताती है और वो सभी इवेंट सिर्फ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से थे. होल्डन कॉफील्ड काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर हैं लिटरेचर का. कैचर इन द रे के नरेटर हैं जो हमें वही सारे इवेंट्स बताते हैं जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए. बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, वो भी हमें होल्डन कॉफील्ड ही बताते हैं. सेम गोज विद नेली डीन ऑफ वुदरिंग हाइट्स की बाकी सब क्या सोच रहे हैं, बाकी सब किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, वो सब कुछ सिर्फ नेली डीन बता रही हैं. तो अगर एक सिंगुलर नैरेटर होता है तो जनरली दैट इज अनरिलायबल नैरेटर. अब इस टाइम के कुछ पॉपुलर राइटर्स देख लेते हैं. हेरोल्ड पिंटर 1930 to 2008 और बुथ डे पार्टी, द डम वेटर, द केयर टेकर, इनके काफ़ी पॉपुलर वर्क्स हैं. यहीं से आप क्रोनोलॉजी भी याद करिए. फर्स्ट प्ले 1957 द रूम. जॉर्ज ऑरवेल वेरी पॉपुलर फॉर एनिमल फार्म एंड 1984. जॉर्ज ऑरवेल का डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन काफ़ी पॉपुलर नॉन फिक्शन भी है. द रोड टू विगन पियर ये भी काफ़ी पॉपुलर है. इन सब के ईयर्स अगर आप याद करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. पोस्ट मॉडर्निज्म का मेंशन अधूरा है विदाउट द मेंशन ऑफ सलमान रश्दी. सर सलमान रश्दी, ये नाइटहुड भी इन्हें मिला है. सलमान रश्दी बॉर्न 1947, द सेम एरा जहां उनके सारे कैरेक्टर्स के बर्थ ईयर भी हैं ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन. मिडनाइट चिल्ड्रन सैटेनिक वर्सेस जिनके लिए जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट फतवा भी जारी हुआ था. एंड द वेरी रीसेंट वन विक्ट्री सिटी. एक वर्क है जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर का. दिस इज अ नॉन फिक्शन वर्क रिटन बाय जॉन फ्रेंकोआ लेटर्ड. 1979 की बुक है. सबटाइटल है अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, रिटन बाय जॉन फ्रेंकोआ लेटर्ड, जिसमें कि ऑथर एनालाइज करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या ग्रैंड नैरेटिव और मेटा नैरेटिव की उतनी ज़रूरत है जितना हम यूज़ करते हैं. डिटेल में आप इस वीडियो को देख सकते हैं यूजिंग ऑल दीज कीवर्ड्स एंड माय नेम. अब आपके लिए क्वेश्चन. डैश इज अ फिक्शन अबाउट फिक्शन. पेस्टिश, science fiction, metafiction or epigraph. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर daily live sessions होंगे, daily extensive MCQ practice होगी, PDF of each topic will be given in class और mock test होते हैं हर weekend पे, जिससे कि आपकी अपने exam के लिए बहुत ही thorough preparation हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. I really hope you like the video और आपने notes भी properly note down किए हैं. सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा. That is the real time experience of all the students that I have been teaching since years. सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है. तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन.